So good morning everyone. Today we have to start our exercise 5.2 with question number 5. Till now we have done 4 questions of this exercise and now we have to start with question number 5 again, telling that in this exercise we are using the formula an is equal to a plus n minus 1 multiply d. Right? So with question number 5, part 1 is you are given finite AP 7, 13, 19 and its last term is 205 and we have to find out that how many terms are here. How many terms means we will assume here that here total are n terms. ठीक है, आप assume करके चलेंगे कि यहाँ पर total हमारे पास n terms है. That means this is the first term, second term, third term, this will be the nth term. ठीक है, so आपने फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. n मीन्स हमारे पास टोटल n टर्म्स हैं. कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n बिकॉज n इज वेरिएबल है विच वी हैव एज्यूम्ड फॉर आवर कन्वीनियंस. d कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यू विल गेट 6. ठीक है, नाउ an अगर n टोटल टर्म्स हैं, ये हमारी nth नंबर की टर्म है, मींस 205 इज द वैल्यू ऑफ an. सो वी हैव an इज इक्वल टू 205. जो भी आपको लास्ट टर्म गिवन हो या ये कह दें कि ये इसमें फिफ्थ टर्म है तो आपने उस टर्म को an लेना है. सो लेट वी अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 205. अब इसमें जरा आप वैल्यूज पुट कर दीजिए. a is 7 plus n minus 1 and d is 6 is equal to 205. ठीक है, 7 को उधर लेके जाइए, n minus 1 multiply 6 is equal to 205 minus 7 and 205 minus 7 will be 198 और यहाँ वाला 6 मैं नीचे ला रही हूँ. ठीक है, सो आपने ये कैंसिल कर दिया, इट विल बी 33. n minus 1 is 33, so the value of n will be 33. This 1 is going on the other side, so you will get n is equal to 33 plus 1, that is 34. So in this AP, this is the finite AP with 34 terms. ठीक है, इसी तरह का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. You have to do the question yourself. That is 18, 15 half, 13. This is the second part. अभी कीजिए और मुझे आंसर बताइए. 13 half, 15 half and 13. You have to tell the number of terms. Yes, Purti, right? निष्ठा बोलिए क्या क्वेरी है बेटा? मैम 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन ओमिट है. नहीं, yesterday we did. हम थर्ड क्वेश्चन तो कल किया था हमने. नहीं बेटा, फोर्थ भी हो गया था. ओके मैम. I'll send the recording. You can check in that. ठीक है, चलिए. Hurry up, let me know the answer. खुशी, सात्विक, पूर्ति, they all have given the answers. पल्लवी, अच्छा ये तो पिछले क्वेश्चन का है, जल्दी से इस पर भी आ जाइए. पल्लवी has given. Pranjal, man, but we have to tell again the same. Okay, last term I have not written here. In this, the last term is given minus 47 and you have to tell how many terms are here in this finite AP. So you will take an is equal to minus 47, put the value of a, d and an to get the value of n. हाँ जी, ठीक है. रक्षिता, तन्मय, करेक्ट. चले कर दो इरेज इसको तो, और आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. मैं लिख देती हूँ, इसको भी जल्दी से कर देते हैं. इन दिस एपी you have, this is the second part of fifth question. You have a 18, d is second term minus first term, so 15 half minus 18, right? It will be 31 upon 2 minus 18, that means 31 minus 36 upon 2, so we have minus 5 by 2. So common difference is minus 5 by 2 and now we have to find out the value of n for this
You are given an, that means the last term to be -47. ठीक है, an की जगह पे a plus n minus 1 multiply d is equal to -47. Now the value of a we are taking 8 plus n minus 1 multiply -y/2 is equal to -47. 18 को उधर लेकर जाओ पहले, you will get n minus 1 multiply -y/2 is equal to -47 minus 18. ठीक है, so -47 minus 18 will be question 6n is equal to this, which is, हाँ जी, okay. So from here you are getting n minus 1 multiply minus y/2 is equal to -47 minus 18 is -65. So n minus 1 is equal to -65. Visible? Okay. Multiply -2/5. इसको यहाँ लेकर आई रही हूँ, 2/5 है, सॉरी 5/2 है, तो इधर आके 2/5 हो जाएगा, और ये माइनस आपका एज इट इज इधर आया, और नहीं लाना तो माइनस को इधर रखा रहने दो, माइनस से माइनस आप कट कर सकते हैं. ठीक है, इसको आपने यहाँ माइनस से माइनस कट किया है, और 5 से आप इसको कट कर रहे हो 13. सो n minus 1 is equal to 13 to the 26. So you will get n is equal to 26. 1 is going this side. So you will get n is equal to 27 terms. So there are total 27 terms in this AP. बिल्कुल ठीक है वैभव, दिव्या. -150. ओके जी, ठीक है जी, नहीं है, मान लिया सात्विक की बात. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6-1. आपको मैंने सारी टाइप्स इस फॉर्मूला की ना पहले करवाई थी कि आपको पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करनी है, या आपको ये फाइंड आउट करना है कि एपी में कितनी टर्म्स हैं, या आपको एक पर्टिकुलर टर्म गिवन है, यू हैव टू चेक वेदर दिस इज एनी टर्म ऑफ द एपी और नॉट. तो वो सारी आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप का आ रहा है. यू आर गिवन द एपी एंड दैट इज 11, 8, 5, 2 dash dash dash, and you have to check whether -150 is any term of this AP or not. -150 क्या इस AP की कोई टर्म होगी या नहीं होगी. तो हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं लेट -150 is the nth term. ठीक है, हमें नहीं पता, हमने चेक करना है कि ये इसमें है या नहीं है. सो वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज nth टर्म. अगर ये इसमें होगी तो हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा चलता चला जाएगा. अगर ये इसकी कोई टर्म नहीं है और हमने अज्यूम करी है तो कहीं ना कहीं जाकर आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, राइट. सो अगर ये इसकी nth टर्म है, दैट मीन्स आई कैन राइट an इज इक्वल टू -150. राइट नाउ a in this question is 11, the first term. Common difference, second term minus first term, that is -3. ठीक है, is not AP. बिल्कुल जी, ठीक है जी वैभव, मान लिया. Okay, now we are saying that again we have the formula a plus n minus 1 multiply b. ठीक है, let me put the values. an is -150 is equal to a is 11 plus n minus 1, we do not have the value of n, हमें नहीं पता कि ये कौन से नंबर पर आ रही है. d is -3. राइट, शिफ्ट कर दो इसको, 11 को इधर लेकर आओ. It will be -150 minus 11 is equal to n minus 1 multiply -3. ठीक है, एंड करो इसको जल्दी से सिंप्लीफाई. -161 और ये -3 आपका आ गया नीचे. दिस इज इक्वल टू n minus 1. आपने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, इस 1 को इधर ले आए. So you will get n is equal to 161/3 plus 1. ठीक है, उसके बाद करो इसे आप एलसीएम लो. 3, 161 plus 3, that is 164/3. This is the value of n. कैंसिल हो रहा है? कैंसिल नहीं हो रहा. ठीक है, तो यहां से हमारी जो है n की वैल्यू वो आ गई है फ्रैक्शन में. डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो अगर आपने करना है तो. ठीक है,
तो n की वैल्यू तो हमारी डेसिमल्स में हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि n तो आपका नेचुरल नंबर है, पहले नंबर की टर्म, दूसरे नंबर की टर्म, तीसरे नंबर की टर्म। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि -150 इज 54.67 नंबर पर आ रही है टर्म। तो ये आंसर आपका n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. So our assumption is wrong. Because n is a natural number. ठीक है, सो ये आपकी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है. n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए. इसके बाद आप लिखेंगे सो आवर assumption is wrong, hence -150 is not any term of given AP. Clear to everyone? So now we are on question number 7. Find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. जो हमें given है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं. 13th term is 38, sorry 11th term is 38. So I am writing A11 is equal to 38. ठीक है, उसके बाद है 16th term is 73. राइट, ये 16th टर्म है जो 73 है. नाउ वी हैव टू फाइंड द 31st टर्म ऑफ दिस AP. A31 ये मेरे पास नहीं है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. राइट, इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं. वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला वी विल गेट 2 इक्वेशंस. 2 इक्वेशंस आएंगी, उनको एलिमिनेशन से आप सॉल्व करोगे. A की वैल्यू निकालोगे, D की वैल्यू निकालोगे, और अगर हमारे पास A और D की वैल्यू आ गई तो इसको निकालना कोई मुश्किल ही नहीं है. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट. A11 वी कैन राइट एज A plus 10D इज इक्वल टू 38. ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1. इन द नेक्स्ट A16 है, दैट मीन्स A plus 15D इज इक्वल टू 73. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, नाउ ओके जी, ओके, यू आर सेंडिंग द आंसर्स. ये 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमारे पास माइनस कर देते हैं क्योंकि A का कोफिशिएंट सेम है. इफ वी सब्ट्रैक्ट द 2 इक्वेशंस, क्योंकि मेरे पास ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू आनी चाहिए. सो फर्स्ट आई एम सब्ट्रैक्टिंग द 2 इक्वेशंस. A plus 15D की वैल्यू 73 एंड फ्रॉम हेयर आई हैव A plus 10D इज इक्वल टू 38. इन दोनों इक्वेशंस को माइनस किया. माइनस मीन्स साइन चेंज कर दो, और साइन चेंज जैसे ही आप करेंगे ये A से A कैंसिल. नाउ 15D minus 10D is 5D एंड 73 minus 38 is कितना आ जाएगा? सॉरी 35 एंड पॉजिटिव, राइट. सो D will be 35 upon 5. ये आ गया आपके पास, D की वैल्यू आ गई है 7, राइट. अगर D7 आ गया तो मुझे A चाहिए, सो दैट आई कैन राइट द 31st टर्म. इस वैल्यू को हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी. ठीक है, तो मैं पुट कर रही हूँ इसे फर्स्ट इक्वेशन में. आई विल गेट A plus 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38. ठीक है, सो A plus 70 is 38. That means A is equal to 38 minus 70, that is minus 32. ठीक है, ओके. A की वैल्यू आ गई है, D की वैल्यू आ गई है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 31st टर्म. सो A31 का आपको पता है दैट दिस इज A plus 30D, राइट. वैल्यूज पुट करते हैं. A इज कितनी आई थी? -32 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है आपके पास 7. कुछ गड़बड़ होगी, क्या किया मैंने? A सॉरी नहीं, ठीक है. A plus 10 इंटू 7 70, 38 माइनस 70. अच्छा, इधर ये आपकी है 30D. सो दिस इज 30 मल्टीप्लाई 7. ठीक है, सो -32 प्लस
210 and minus 32 plus 210 it will be 178. ठीक है, so 178 is the 31st term of this AP. ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए क्योंकि इसी टाइप आपके यही टाइप चलती है क्वेश्चन की कि आपको दो इक्वेशंस बनानी है, उन दो इक्वेशंस को आपने सिंप्लीफाई करना है, आपके पास ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, उस ए और डी की वैल्यू से आपको जो चाहिए आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ए 11 था, आपने लिया ए प्लस 10d 38, ए 16 वॉज गिवन, सो ए प्लस 15d दिस वॉज 73। ये दो इक्वेशंस आई हैं, मैंने दोनों को किया है माइनस, जैसे ही माइनस किया ए आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ए आपका खत्म होते ही यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, लेट मी डी की वैल्यू जो आएगी दिस विल बी 7, ठीक है, ओके। इस डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया है, ए प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 38, 7 को मल्टीप्लाई 10 से किया तो 70, दिस 70 वी आर शिफ्टिंग ऑन द अदर साइड, so 38 minus 78 will be minus 32. Now D we have A also, and we have to find out A 31 means the 31st term and 31st term means A plus 30D, 31 में से एक less, so minus 32 is the value of A, 30 multiply D is 7, so 37 is 210, 210 में से 32 minus करेंगे you will get minus 1 sorry प्लस 178। निष्ठा आई थिंक अब थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। चलिए इरेजिंग नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है जिसके अंदर टोटल 50 टर्म्स हैं, that means 50 क्या हो गई, of which third term is 12 and last term is 106, third term is 12, last term को हम generally बोलते हैं an, ठीक है, an आपके पास given है 106 और total 50 terms हैं, that means n is equal to 50, ठीक है, या तो ये समझ लीजिए या फिर आपके पास जैसे 50th टर्म गिवन है तो आप इसको सीधा सॉरी 50 टर्म्स टोटल गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो दैट मीन्स जो लास्ट टर्म होगी वो 50th नंबर पर ही आ रही होगी, ठीक है। टोटल टर्म्स आपकी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म इस तरह से शुरू हो रही है और लास्ट वाली जो टर्म है वो 50th नंबर की टर्म है और वो जो टर्म है दैट इज 106, दैट मीन्स वी कैन से दैट A50 इज 106। आप ये सारा कुछ ना लिख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दैट यू हैव A50 इज इक्वल टू 106, और अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया है। दिस इज योर 8th क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड द 29th टर्म, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। 29 टर्म के लिए फिर से आपको ए चाहिए, डी चाहिए, ए और डी के लिए आपको दो इक्वेशंस चाहिए और वो दो इक्वेशंस कहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी, ठीक है। चलो लिखो फिर, फर्स्ट आपकी इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस 2d इज 12, फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को कर दो माइनस, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस की है, सो आई विल गेट a plus 49d is equal to 106, from this equation I have to subtract a plus 2d is equal to 12, माइनस करना है तो साइन कर दो चेंज, 29th टर्म इज ओके 64, आंसर दिया है मिष्टी ने, 49 minus 2 is 47, d this is equal to 106 में से आप 12 माइनस करेंगे you will get 94, ठीक है, ओके, सो d is equal to 94 upon 47 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 से, ठीक है, सो यू हैव d is equal to 2, बिल्कुल ठीक है जी, d 2 आ गया। उसके बाद क्या करना है, a फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो टू इक्वेशन नंबर 1, so we are putting this value of d in first equation, so we will have a plus 2 multiply d is also 2 is equal to 12, what you will get the value of a,
you will get a is equal to 12 minus 2 to the 4 and 12 minus 4 is 8. ये तो आपकी आ गई है ए और डी की वैल्यूज. लेट वी गो ऑन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. 29th टर्म और 29th टर्म का आपको पता है दैट दिस इज ए प्लस 28d. वैल्यूज पुट करो. ए 8 plus 28 multiply d is 2. So this will be 8 plus 56 and this is 64. So your 29th term will be 64. I hope it is clear to everyone. If not, you may raise your hand. Yes. So next we are on question number 9, in which you are given two terms of the AP. But now we don't have to find out a particular term. The term we are given and we have to find out the value of n. This is your question number 9. Third term and the 9th term. Third term means A3 and the 9th term means A9. These are given to be 4 and minus 8. Okay? You have to tell which term of this AP is 0. So we will assume nth term. ठीक है. an is equal to 0. हमारे पास nth term हमने assume की है कि वो 0 है and we have to find out the value of n कि कौन से नंबर पे वो 0 term आएगी. So from here let me write a3 as a plus 2d. This is equal to 4 and a9 is a plus 8d is equal to minus 8. This is the second equation. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को करते हैं माइनस. So I will get a plus 8d is equal to minus 8 and a plus 2d is equal to 4. माइनस करेंगे ये आपका कैंसिल. 8 minus 2 is 6d and minus 8 minus 4 will be minus 12. So you will get the value of d is minus 12 upon 6, that is minus 2. D की आपके पास वैल्यू आ चुकी है एंड फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ D नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A. इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं. पुट इन फर्स्ट इक्वेशन. आई विल गेट A plus 2 मल्टीप्लाई D is minus 2. दिस इज इक्वल टू 4. 2 to the 4. A minus 4 is 4. इसको उधर ले जाओ. So you will get A is equal to 4 plus 4, that is 8. That means the first term is 8. Common difference is minus 2. And now we are coming on an as an is equal to 0. That implies a plus n minus 1 multiply d is equal to 0. So let me put the value of a and d. 8 plus n minus 1 multiply minus 2. This is equal to 0. पहले 8 को उधर ले जाते हैं. n minus 1 multiply minus 2 is equal to 0. minus 8 will be minus 8. ठीक है. फिर 2 को नीचे ले आओ. n minus 1 is equal to minus 8 upon minus 2. माइनस से माइनस कैंसिल. 2 से आपका 8 कैंसिल. So you will get n is equal to 4. ये 1 आपका दूसरी तरफ. So 4 plus 1 means 5. That means your fifth term of this AP is 0. So in the answer you will write fifth term is 0. ठीक है. So fifth term of this AP will be 0. आपके पास third term given थी, हमने a plus 2d लिख दिया. Ninth term थी, we have written a plus 8d. दो इक्वेशंस आ गई. दोनों इक्वेशंस को किया है माइनस. जैसे ही माइनस किया a कैंसिल, आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी. इस d की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट करेंगे. जैसे ही पुट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a. नाउ वी हैव a, वी हैव d, but we have to find out which term is 0. We have assumed that its nth term is 0. nth term means a plus n minus 1 multiply d is 0. a की वैल्यू पुट की है, d की वैल्यू पुट की है, n की वैल्यू फाइंड आउट की है. You are getting n is equal to 5. That means fifth term of this AP is 0. Rest of the questions will be done in the next class. Okay, that was all.